Hi, all of you. Today I'm going to start a new chapter, that is human reproduction, where we will learn about phases of embryonic development and male reproductive system. I am Megha, your educator on YouTube. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the updates. So let's start today's topic. So first topic, that is reproduction. You all are well aware of it. It is the ability of the living organism to produce young ones of their own kind. Okay, it takes place in two ways. Sexual reproduction is there as well as asexual. In sexual reproduction, two parents are involved, whereas in asexual reproduction, only one parent is involved. Okay, is it clear? This you all are well aware of, right? Now move on to the next topic, that is the phases of embryonic development. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कौन कौन से फेजेस होते हैं? फर्स्ट फेज इज द गैमीटोजेनेसिस. एज द वर्ड सेज गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना means the formation of the gamete is known as gametogenesis. In male, the gamete is sperm. In female, the gamete is ova. Okay, the formation of gamete, that is sperm in male and ova in female, is known as what? Gametogenesis. Then after the formation of the gametes, next is the fusion of the gametes. The fusion of the gametes is called fertilization. Fusion results in the formation of a cell that is known as zygote. Okay, after the fusion of the male gamete and the female gamete, a cell is formed that is known as the zygote. The fusion of the gamete is known as fertilization. So first step is the gametogenesis, means gametes का बनना. दूसरा हो गया फ्यूजन होना. फ्यूजन होना हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक है, जाइगोट बन गया. नेक्स्ट स्टेप इज द जेस्टेशन. Gestation means we can also say it pregnancy. Okay, from the conception till the birth. Okay, कंसेप्शन से लेके यंग वंस की बर्थ तक का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. ओके, इन ह्यूमन इट इज अराउंड 280 days. Okay, how many days? It is around 280 days. Okay, gestation period is 280 days in humans. Okay, now this gestation period means there are sequence in this process. They are cleavage and blastulation, gastrulation एंड ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, इस जेस्टेशन में ये तीन सीक्वेंस होते हैं. पहला है क्लीवेज. तो क्लीवेज में क्या होता है? एज यू हैव सीन, जाइगोट बन गया. जाइगोट नाउ डिवाइड. ओके, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म मेनी सेल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ब्लास्टोमियर. ओके, जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म ब्लास्टोमियर. ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ क्लीवेज. ठीक है, क्लीवेज में क्या हो रहा है? जाइगोट रैपिडली डिवाइड हो रहा है और क्या बन रहा है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, ये हो गया क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज द गैस्ट्रुलेशन. अब सेल्स बन गए. ठीक है, सेल्स क्या बनाएंगे? इधर उधर मूव होके जर्म लेयर्स बनाएंगे. दे फॉर्म जर्म लेयर्स. एंड इन केस ऑफ ह्यूमंस, हाउ मेनी जर्म लेयर्स आर देयर? 3 germ layers, right? Ectoderm, mesoderm and endoderm. ठीक है, 3 germ layer होती हैं. और फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा सेल्स का. सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड. ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन्स का बनना शुरू हो गया. अब ऑर्गन्स बनने लगे. ठीक है, क्लीवेज मीन्स जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म मेनी सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स बन गए. अब वो सेल्स क्या होंगे? दे फॉर्म जर्म लेयर्स. गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स बन जाएंगी. जी से गैस्ट्रुलेशन, जी से जर्म लेयर्स. ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन का बनना. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स एट स्पेसिफिक प्लेस टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. ओके, organ system बन गया. now baby is developed. तो next step, what is the next thing? Parturition means the birth of the full term young one, birth of the baby. Is it clear now? These are the phases of the embryonic development. so these phases we will learn in detail. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, गैमीज बनना. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो गया. जेस्टेशन हो गया, प्रेगनेंसी पीरियड. देन द बर्थ ऑफ द बेबी.
Now move on to the human reproductive system. So it is divided into primary sex organs, secondary sex organs, and external sex characters, also called accessory sex characters. Primary sex organs, they are the main organs called gonads. Okay, primary sex organs are also called gonads. The main function of these organs is to produce sex cells, also called gametes. सेक्स सेल्स और गैमीट्स एक ही बात है, ठीक है। सेक्स सेल्स और गैमीट्स एक ही बात है, याद रखिएगा। तो ह्यूमंस में मेल में जो गैमीट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल्स में गैमीट होता है ओवा, ठीक है। गैमीट्स बनाते हैं गोनैड्स और सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। सो गोनैड्स डू two functions: formation of sex cells and also secrete sex hormones, isn't it? So these are the primary sex organs. In males, the primary sex organ is the testes, whereas in female the primary sex organ is ovaries, ठीक है, याद रहेगा। primary sex organ in males is testes, whereas in female is ovaries, ठीक है। टेस्टिस क्या बना रहे हैं, स्पर्म्स बना रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। ओवरीज बनाएंगी ओवा, ये क्या है, गैमीट्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या रोल है, सेक्स सेल्स बनाना और सेक्स हार्मोन सिक्रीट करना। देन देयर आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, they are not producing sex hormones and sex cells, they are not producing them, but what they are doing then, they are transferring the gametes, okay। उनका रोल क्या होता है, गैमीट्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और दूसरा रोल है उनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करना, ठीक है। ये इनका काम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। वो सेक्स सेल्स या हार्मोन्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनको ले जाने में जो गैमीट्स हैं, दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गैमीट्स and also helping in the process, reproductive process, right? Now about the external sex character. External sex characters are help to distinguish the male and the female. अब मेल है और फीमेल है, आप इजीली आप बता सकते हैं ये मेल है या ये फीमेल है। कैसे बता सकते हैं आप, एक्सटर्नली कैसे बता सकते हो आप, इजीली यू कैन फाइंड दैट मेल की जो वॉइस होती है वो काफ़ी लो पिच वॉइस होती है, whereas females are having high pitched voice. Females hips are broader as compared to males, whereas male shoulders are broader as compared to females. So these are the general characters which you all are well aware of. I am not going in detail in the external sex characters, okay? So you are now clear about it. Primary sex organs, they are the means they are testes in male, they are primary sex organs. In females, ovaries, testes produce sperms as well as hormones also, and ovaries produce ova and sex hormones, right? Secondary sex organ function is to transport the gametes and also in helping in the reproductive process. Now let's see the male reproductive system. तो आज हम मेन जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज स्क्रॉटम, देन टेस्टिस, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, स्क्रॉटम, देन पेयर ऑफ टेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, एक जस्ट अ सेकेंड, वास एफरेंशिया, देन एपिडेडमिस, vasa efferentia, a pair of epididymis, a pair of vasa differentia, a pair means ये पेयर में है, दो हैं, ठीक है। vasa efferentia पेयर में नहीं है, epididymis पेयर में है, vasa differentia पेयर में है, okay। then pair of ejaculatory duct is there, ejaculatory duct and urethra and penis as well as certain glands called accessory sex glands, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं दे मेक्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, अभी तो मैंने आपको नाम बताए हैं, नाम याद रहेंगे, हो जाएंगे याद, ओके, डोंट वरी। फिर से मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ, स्क्रॉटम, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, पेयर ऑफ एपिडेडमिस, देन अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, पेयर ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट, अ यूरेथ्रा, पेनिस एंड सर्टेन
ग्लैंड्स, सर्टेन एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रॉटम से। ओके, सी दिस इज द एब्डोमिनल एरिया, ओके। हियर scrotum is there. Scrotum is a pouch of pigmented skin, okay. It is a pigmented skin which is arising from the lower end of the abdomen. So this is the abdominal area. From the lower end you will found scrotum. Now scrotum contains, in the center there is a muscular compartment is there which is dividing the scrotum into two parts. This is known as septum scroti. Septum क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन। तो ये जो स्क्रॉटम है इसको सेप्टम स्क्रोटाई दो में डिवाइड कर देता है। सेप्टम स्क्रोटाई क्या है, एक मस्कुलर पार्ट है अंदर से जो स्क्रॉटम को दो में डिवाइड कर देगा, दो कंपार्टमेंट में, ठीक है। और फ्रॉम द आउटसाइड यू विल सी अ मार्क, दैट मार्क इज कॉल्ड रेफे, ठीक है। आउटसाइड एक मार्क होता है दैट इज कॉल्ड रेफे, इट इज द मार्क ऑफ द सेप्टम स्क्रोटाई। नाउ सेप्टम स्क्रोटाई याद रहेगा, सेप्टम क्या हो गया, पार्टीशन, स्क्रोटम का पार्टीशन है ये, ठीक है। इनसाइड स्क्रोटम टू टेस्टीज आर प्लेस्ड, ठीक है। यू नो अबाउट दैट दीज टेस्टीज आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल एरिया, बट in the 7th month they are then transferred from the inguinal canal. These are the inguinal canal. This is just a extra knowledge, okay, no need to learn about it. inguinal canal होती है जिसकी हेल्प से ये टेस्टीज 7th मंथ में, जब बेबी डेवलप हो रहा है 7th मंथ है उस टाइम पे दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, ठीक है। ये कहाँ आ जाती हैं, एब्डोमिनल एरिया से स्क्रॉटम में आ जाते हैं इंग्विनल कनाल की हेल्प से। नाउ इन sometimes not generally, sometimes tearing occurs in this inguinal canal and it leads to the bulging of the intestine. इंटेस्टाइन की बल्जिंग हो जाती है जिसकी वजह से, और ये इंटेस्टाइन एक लूप के फॉर्म में नीचे आ जाती है इन द स्क्रॉटम एंड दिस लीड्स टू इंग्यूनल हर्निया। इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसे बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया, ओके, समझ गए। स्क्रॉटम इज़ क्लियर। स्क्रॉटम क्या, एक पाउच है पिगमेंटेड स्किन का जो कि एब्डोमेन की लोअर वॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड बिटवीन द लेग्स, ठीक है। स्क्रॉटम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द सेप्टम स्क्रोटाई। इन द स्क्रॉटम टू टेस्टीज आर प्लेस्ड, ठीक है। नाउ दिस स्क्रॉटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर, ठीक है, ये थर्मोरेगुलेटर का काम करता है, ओके। कैसे करता है, ये स्क्रॉटम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, सपोज इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्क्रॉटम जो है ये 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री लोअर होता है यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। क्यों होता है, इसका एक यूज़ है। अगर हमारी जो टेस्टीज होती हैं अगर वो इस टेम्परेचर पे रहेंगी तो स्पर्म्स नहीं बनेंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस at temperature lower than the 37 degree centigrade, that is around 35 degrees centigrade. So this scrotum act as a thermoregulator and help in formation of these sperms, ठीक है। is it clear now? okay, now about the testes. टेस्टिस क्या होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन होती हैं, पिंक कलर के ओवल ऑर्गन है जिनकी लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, वेयर एज 2 to 4 सेंटीमीटर थिक। तो these are the dimensions, ठीक है। पिंकिश ओवल ऑर्गन विच आर प्लेस्ड इनसाइड द स्क्रॉटम। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। स्क्रॉटम क्या है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, ये भी आपको पता हो गया क्यों होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन आपको, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन आप जानते हैं, लंबा कटा हुआ सेक्शन, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन जब हम देखेंगे टेस्टिस का, देन व्हाट वी विल सी, लेट्स सी दैट, ठीक है। पहला जो होता है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ट्यूनिका लेयर। तो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ट्यूनिका की, 3 लेयर हैं, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया,
ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा एंड ट्यूनिका वेजिनालिस। इस डायग्राम में आपको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दिखाई हुई है और ट्यूनिका वेजिनालिस दिखाई हुई है, ठीक है। तो 3 लेयर होती है बेसिकली। लेट मी टेक अनदर पेन। हाँ, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस आर शोन इन दिस फिगर। ट्यूनिका आप याद रखिएगा, नाम केवल ट्यूनिका याद रखिए। ट्यूनिका क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है इट्स इन ग्रोथ, इट इज़ इन ग्रोइंग लाइक दिस ना, इट्स इन ग्रोथ मेक्स लोब्यूल्स इन द टेस्टिस, ठीक है। द इन ग्रोथ ऑफ द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मेक्स many lobules in the testes. Around 200 to 300 lobules are formed in the testes, ठीक है। 200 से 300 लोब्यूल्स बन जाते हैं हर एक लोब्यूल में। इन एवरी लोब्यूल यू विल फाउंड very highly convoluted structure that is called the seminiferous tubule. ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, seminiferous tubule, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा काम इसी के अंदर है, बहुत सारा काम होता है इसमें। तो seminiferous tubule बहुत सारा तो नहीं होता, लेकिन हाँ जो मेन काम है वो हो रहा है, ओके, ठीक है, समझ गए आप। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद रहेगा किसके अंदर है, ये लोब्यूल्स के अंदर। ये लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स किसके बन रहे हैं, जो ट्यूनिका लेयर है एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की हेल्प से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इन ग्रोथ हो गई है, मतलब उसकी एक्सटेंशन हो गई है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे लोब्यूल्स बन गए हैं। कितने, अराउंड 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, 1 to 4 कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्लियर हो गए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब बाहर आ रहे हैं, ये जो ट्यूब बना रहे हैं छोटी छोटी, ये ट्यूब्स क्या होती हैं, ये होती हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अभी मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड है वो क्या बना रहा है, ट्यूबुलाई रेक्टाई बना रहा है। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जब बाहर आ रही है तो ये मेक अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, irregular tubes are there, many tubes, okay, these are called reticestes। आप याद कैसे करेंगे ये इतना सारा, चलिए मैं बताते हैं आपको कैसे याद होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, FEROUSTUBULE, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से आप याद करेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। ट्यूब्यूल से याद हो गया ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेक्टाई से आपको नेक्स्ट याद हो जाएगा रेटिटेस्टस। एक तो याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग का, ट्यूब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से आपको याद हो जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई है नेक्स्ट, रेक्टाई से याद हो जाएगा रेटिटेस्टिस है, ठीक है। तो द सेम रिटन ओवर हियर, हाईली कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये हो गई बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो क्या कर रही है, ट्यूबुलाई रेक्टाई बना रही है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन मेनी ट्यूबुलाई रेक्टाई कनेक्ट टू फॉर्म रेटिटेस्टिस, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया, रेटिटेस्टिस तक याद हो गया। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर किसके अंदर है, ये यहाँ पे जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेडिक सेल्स भी होते हैं, वो भी आगे वाले डायग्राम में आपको पता चलेगा। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, समझ गए किसके अंदर है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें बहुत सारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और सब सेल्स भी हैं, लेडिक सेल्स हैं, तो वो भी हम देखते हैं आगे, समझ गए इतना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो है वासा एफरेंशिया। These tube, okay, these tube are piercing through the albuginea layer। एल्ब्यूजिनिया लेयर को, ट्यूनिका की बात करें, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर की जो बात कर रही हूँ मैं, उस लेयर को पियर्स करती हुई ये बाहर आती है एंड दे जॉइंस द एपिडाइडमिस पोर्शन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एपिडाइडमिस, ओके। एपिडाइडमिस जो एरिया है वो 3 में डिवाइड है। ऊपर वाला एरिया जो होता है एपिडाइडमिस का बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेड पार्ट, हेड ऑफ एपिडाइडमिस। Then this narrow part is the body of epididymis and here you will see the tail of epididymis। Just learn the name epididymis। क्या, किस
जो ट्यूबुलाई वो एफरेंशिया वासा एफरेंशिया जो है, ये वासा एफरेंशिया है। वासा एफरेंशिया किसको ज्वाइन कर रही है? एपिडाइडमिस को। एपिडाइडमिस की जो टेल है उससे कंटिन्यूएशन में एक और ट्यूब है जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। बहुत सारी ट्यूब हो गई ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आपको मैंने 3 पहले याद करा दी थी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से क्या हो याद रहेगा? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से क्या याद आ गया? रेटिटेस्टिस। यहाँ तक रेटिटेस्टिस हो गया। इसके बाद आएगा वासा एफरेंशिया। एफरेंशिया जो है इजेक्ट कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है। एग्जिट किसको एग्जिट कर रही है? स्पर्म को लेके जा रही हैं, ठीक है। ये कहाँ जा रही हैं? अब ये ज्वाइन करके क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये भी बहुत कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एपिडर्मिस 3 में डिवाइडेड है, हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, टेल जो है आगे बढ़ के एक्सटेंड होके क्या बना रही है? नेक्स्ट ट्यूब, दैट इज वासा डिफरेंस। ओके, यहाँ तक समझ गए? शायद समझ गए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ऑल क्लियर। लेट मी रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ओके, तो ट्यूनिका प्रोटेक्टिव कोट्स कौन कौन से होंगे? ट्यूनिका लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस। वेजिनलिस ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है ट्यूनिका वेजिनलिस का, ठीक है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, अभी आपको बताया मैंने, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं, ठीक है। ये लोब्यूल्स, इनके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। Each lobule contains highly convoluted seminiferous tubules. Seminiferous tubules join to form tubuli recti. Tubuli recti opens into irregular tubules called reticestis. ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। ये क्या है? टीएस है, टीएस टेस्टिस का ये जो सेक्शन था, ये क्या कौन सा सेक्शन था? लॉन्जिट्यूडनल था। ये जो सेक्शन है ये ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सपोज दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। हियर you will see that seminiferous tubule is made up of 2 types of cells, male germ cells and Sertoli cells. मेल जर्म सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल शेप के, और कुछ लॉन्ग सिलेंडर जैसे सेल्स होते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको मेल जर्म सेल्स मिलेंगे एंड सर्टोली सेल्स मिलेंगे। अब इन दोनों का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल? तो फंक्शन इज मेल जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म्स, राइट। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। यही इनका काम है। तो मेल जर्म सेल्स जो है माइटोसिस होती है इनमें, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया देन ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा, वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म्स स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और वो क्या बना देता है? स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक का जो सफ़र हुआ उसको प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ अबाउट दी लेडिक सेल्स, ओके, ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ पे आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं? कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? लेडिक सेल्स मिलेंगे। इनका रोल क्या होता है? लेडिक सेल्स जो होते हैं एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं। अब आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। एंड्रोजन्स आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स के अंदर, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन,
ओके आपको केवल याद रखना है टेस्टोस्टेरॉन. रिमेंबर द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. ओके स्पेलिंग इज written over here TESTOSTERONE टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है ये स्पेलिंग है. ओके नाउ अबाउट दी वासा एफरेंशिया. इसका क्या रोल है. सबसे पहले तो आपको वासा एफरेंशिया पता है कौन से हैं. ये जो आपको मैंने दिखाए थे ये ट्यूब्यूल्स हैं. ये कम से कम अराउंड 15 to 20 होती हैं. ठीक है 15 to 20 ट्यूब्यूल्स होती हैं. दीज ट्यूब्यूल्स जॉइंस दी व्हाट एपिडाइडमिस. ठीक है वासा एफरेंशिया में सीलिया होते हैं. सीलिया का रोल होता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करना, क्योंकि सीलिया क्या होंगे ऐसे ऐसे मूव करते हैं कि सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है तो ये इनकी हेल्प से जो स्पर्म है वो इजीली मूव कर जाता है और एपिडाइडमिस में आ जाता है. ठीक है ये है वासा एफरेंशिया का रोल. अब वो एपिडाइडमिस को जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी 3 में डिवाइडर हो जाता है, हेड में और बॉडी एंड टेल. ठीक है तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होता है इनका स्पर्म्स का वो इन्हीं के अंदर होता है. ठीक है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है स्पर्म्स का. मीन्स लाइक दे एक्वायर्ड मोटिलिटी, दे हैव नाउ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी. तो ये कुछ चेंजेस होते हैं स्पर्म्स के अंदर. वो कहाँ होते हैं एपिडाइडमिस के अंदर होते हैं, एपिडाइडमिस के हेड पार्ट में. ठीक है और यहाँ पे टेम्पररी स्टोर हो जाते हैं स्पर्म्स. स्टोरेज का भी ये काम करते हैं. ठीक है नाउ वन थिंग इज़ दैट वेदर इजैकुलेशन इज़ टेकिंग प्लेस और नॉट. इजैकुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है स्पर्म्स तो बनेंगे ही. इसके स्पर्मेटोजोआ तो बनते रहते हैं. तो स्पर्मेटोजोआ स्टोर हो जाते हैं एपिडाइडमिस में. अगर ये जो इजेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये क्या होंगे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे. कहाँ पे वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया में. ठीक है दे आर रीएब्जॉर्ब इन द वासा डिफरेंस. ठीक है ये क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं वासा डिफरेंस की. तो जो वासा डिफरेंशिया है इट इज़ कंटिन्यूइंग फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडाइडमिस. यहाँ से कंटिन्यू कर रही है. पहले तो ये कॉइल्ड होती है, टेस्टिस में ये थोड़ी कॉइल्ड होती है, फिर ये स्ट्रेट हो जाती है. जब एब्डोमिनल एरिया में जब ये जाती है तो ये स्ट्रेट हो जाती है. ठीक है ये जो आपको दिख रही है ये क्या है वासा डिफरेंस है. नाउ इट गोज़ अप. ठीक है अब ये क्या होगा ये जो यूरेटर होते हैं, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है. तो यूरेटर के पीछे से इट मेक्स अ लूप. बैक साइड से ये एक लूप बनाते हुए आगे की तरफ आती हैं. किसकी बात कर रही हूँ मैं आई एम टॉकिंग ऑफ वासा डिफरेंस. ठीक है लूप बनाती हुई पीछे से यूरेटर के आगे की तरफ आ जाती हैं. फिर ये किससे कनेक्ट हो जाती हैं दे आर गेट्स कनेक्टेड विद द सेमिनल वेसिकल. अब ये कौन सी चीज़ आ गई ये आ गए ग्लैंड्स. ठीक है ये कुछ ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरिथ्रल. ये तीनों ग्लैंड्स हैं. तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई किससे सेमिनल वेसिकल से. सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस की एक कॉमन जो ये ट्यूब दिख रही है आपको इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है ये इजैक्यूलेटरी डक्ट किससे जॉइन हो जाती है यूरिथ्रा से. इट गेट्स कनेक्टेड टू द यूरिथ्रा. समझ में आई कुछ बात नहीं आई फिर से स्टार्ट करते हैं. हम बात कर रहे हैं वासा डिफरेंस की. तो वासा डिफरेंस मैंने आपको बताया पहले ये थोड़ी कॉइल्ड होती है अंदर टेस्टिस में स्क्रोटम एरिया में, फिर ये स्ट्रेट हो जाती है एब्डोमेन एरिया में. ठीक है एब्डोमेन एरिया में जाते जाते ये स्ट्रेट हो जाती है. फिर ये यूरेटर के पीछे से होती हुई आगे की तरफ आती है. सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उससे जुड़ जाती है. इट गेट्स कनेक्टेड विद द सेमिनल वेसिकल एंड मेक्स a common duct that is known as this black by black color I have shown you that is what is the ejaculatory duct. Let me highlight this area. Okay ठीक है ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है ejaculatory duct है. ये ejaculatory duct now gets connected with what is this pipe. This is what this is the urethra. You know about urethra. Urethra is the common duct to secrete this what we say
यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। तो ये कॉमन डक्ट है जिससे यूरिन भी सिक्रीट हो रहा है और स्पर्म्स भी सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई बात, हो गई यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा क्या है? कॉमन डक्ट है विच सिक्रीट्स यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। Urethra is a urinary duct. From the point it is joined by the ejaculatory duct, carries urine as well as spermatozoa. It passes through the penis. तो पूरी पेनिस से पास हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल पार्ट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पेनिस. पेनिस इज़ द एक्सटर्नल ऑर्गन थ्रू विच द यूरिथ्रा रन्स. इसके अंदर से यूरिथ्रा जा रही है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं पेनिस की। ओ सॉरी, नॉट, हाँ ठीक है, पेनिस की बात करते हैं। तो जो पेनिस है, अगर हम इसका सेक्शन देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कैसा दिख रहा है? इसमें जो होते हैं स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, तो दो ऊपर हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, और एक है नीचे कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, ठीक है। इट कंटेन्स spongy tissues corpora cavernosa and corpora spongiosum. तो पेनिस का ये टीएस है, अंदर से ये होते हैं उसमें स्पंजी टिश्यू विच हेल्प इन इरेक्टिंग दी पेनिस, ठीक है। दिस इज व्हाट इट्स रोल, एंड हियर देयर आर आर्टरीज, वेन्स एंड ऑल. दिस इज व्हाट इज द urethra. Here urethra is in the corpora spongiosum area. ओके, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपको। फिर से मैं आपको ये डायग्राम के हेल्प से एक बार और बता देती हूँ। ये जो ऑर्गन था, क्या था? टेस्टिस थी। टेस्टिस में यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कन्वोल्यूटेड होते हैं, और फिर ये बाहर की तरफ जब निकल रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं? ट्यूबुला इरेक्टाई, विच देन मैनी ट्यूबुला इरेक्टाई जॉइन टू फॉर्म व्हाट? Retitestis. This is retitestis. Retitestis then forms what? Vasa efferentia. Vasa efferentia joins the epididymis. Epididymis then forms what? Vasa deferens. ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब वासा डिफरेंस बन गया। वासा डिफरेंस जो होता है ऊपर को जाता है एब्डोमिनल एरिया में। एब्डोमिनल एरिया में जाने के बाद यूरिटर से टर्न लेता हुआ सेमिनल वेसिकल से जुड़ जाता है। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। यहाँ पे कॉमन डक्ट है सेमिनल वेसिकल की और किसकी? वासा डिफरेंस की। फिर ये बनाते हैं यूरिथ्रा। यहाँ पे यूरिथ्रा है, ये पैसेज है किसका? यूरिन का एज वेल एज स्पर्म्स का, ठीक है। पेनिस के अंदर ये जा रही है, इट इज़ रनिंग इनसाइड द पेनिस, ओके। हियर इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल इज इन पेयर, बल्बो यूरिथ्रल बल्ब जैसे ग्लैंड्स हैं, they are also in pair. Prostate gland is not in pair. Okay, this question can be asked in the exam. चलिए अब हम पहुँचते हैं ग्लैंड्स की तरफ। दिस इज़ द साइड व्यू, ओके, साइड व्यू। तो ये आपको दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है शायद, ठीक है। चलिए अब हम पहुँचते हैं ग्लैंड्स की तरफ। सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल is leaf like gland. It is very elongated and coiled gland and it secrete yellowish alkaline fluid which contain fructose. आपको ये याद रखना है कि ये fructose secrete करता है which gives energy to the sperms. जो sperms आ रहे हैं बन के उनको energy provide करता है, ठीक है। It also secrete ascorbic acid and some prostaglandins also. No need to learn that. Mainly thing, just you have to remember the fructose, okay. It secrete fructose which provide energy to the sperms. Then about the prostate gland, ठीक है। prostate gland, this is prostate gland, okay. Now इसका क्या रोल है? It secrete a milky acidic fluid. It also helps in nourishing the sperms. तो इनका जो रोल है मेन इज नरिशिंग द स्पर्म्स, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी क्या रोल है? टू नरिशिंग द स्पर्म। इट सीक्रेट अ मिल्की एसिडिक फ्लूइड which contains citrate, okay. It contains citrate which is a sperm nutrient.
देन अबाउट द काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड हो गया बल्ब जैसा जो ग्लैंड है, इट ऑल्सो कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इट्स मेन फंक्शन इज टू सिक्रीट म्यूकस, इसका मेन जो रोल है वो है म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट करता है, जो म्यूकस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक यूरिन विच इज़ रिमेनिंग इन द यूरिथ्रा। कोई भी अगर यूरिन क्या होता है, यूरिन का पीएच जो है 7 से कम होता है, इट इज़ अराउंड 5.5 to 6, वो एसिडिक में आता है ना, ठीक है। तो एसिडिक यूरिन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। कौन करता है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन, सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रेट कर रहे हैं, फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है मिल्की एसिडिक फ्लूइड, ऑल्सो इट सिक्रेट सिट्रेट विच इज़ अ स्पर्म न्यूट्रिएंट। काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, इट सिक्रेट म्यूकस विच हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एनी एसिडिक रिमेनिंग इन द यूरिथ्रा। ओके, सब क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, you know that sometimes the withdrawal method of birth control is a failure, in some cases it is a failure, ठीक है। क्यों क्यों ये फेल हो जाता है, ओके। इजैकुलेशन से पहले ही अगर पेनिस विड्रॉ कर लेते हैं तब भी कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है, वाई इज इट सो, द रीज़न इज दैट द कॉपर्स ग्लैंड, it contains mucus, it secretes mucus, and sometimes here in the penis some sperms remains, in some sperms which remains, means we are talking of the previous ejaculation, okay. If in the previous ejaculation some sperms remains in the penis, now through this mucus they comes out and goes in the vagina, and in this way they fertilize the ova, fertilization takes place and zygote forms and pregnancy occurs. So sometimes this withdrawal method is not a proper method of birth control, ठीक है। चलिए एक टर्म आता है सीमेन। तो सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या है, जो सिक्रीशन आ रहा है एसेसरी ग्लैंड्स का और जो स्पर्म्स हैं, मतलब ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, दे टुगेदर मेक सीमेन, ठीक है। सीमेन क्या हो गया, स्पर्म्स प्लस एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन। यू नो सबसे ज़्यादा सिक्रीशन कौन करता है, सबसे ज़्यादा सिक्रीशन 60% सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल ग्लैंड करता है, अराउंड 60%। 10% जिसमें से स्पर्म्स होते हैं, बाकी 30% अदर ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन है वो किसका है, सेमिनल वेसिकल का होता है। अच्छा, एक चीज़ तो हमने नहीं बताई आपको, ओके। वन थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़, यू नो अबाउट कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम, ठीक है। स्पंजी टिश्यूज़ जो होते हैं पेनिस के अंदर, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम जो होते हैं, देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, इन्हीं से जो बनता है वो ग्लैंस पेनिस होता है, वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम, दैट इज़ नोन एज ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अब ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज़ कॉल्ड प्रीप्यूस और फोर स्किन। ग्लैंस पेनिस के बाहर एक लूज फोल्ड होती है स्किन की, जो स्किन अटैच नहीं होती है, ठीक है। ये स्किन अटैच नहीं होती, एक लूज होती है, यहाँ पे इस एरिया में लूज होती है, ठीक है। इस स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन, ठीक है। अब ये जो प्रीप्यूस है, ये भी, इनके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स हैं, ये भी कुछ ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, नहीं नॉट सिक्रीट करते हैं, इनके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसका जो स्मेल है वेरी फाउल होती है, फाउल स्मेलिंग होती है, वो वाइटिश कलर का होता है, पेस्टी, ठीक है। वो कौन सिक्रीट करता है, प्रीप्यूस करता है, क्योंकि यहाँ भी एक कुछ ग्लैंड्स बोलते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में नहीं पूछा जाता है, बट ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, ठीक है। समझ गए, ग्लैंड्स पेनिस क्या होती है, वेरी सेंसिटिव रीजन है ये पेनिस का, ओके। now I think everything I had taught to you, so अच्छा एक और चीज़, इन सम केसेस यू नो दिस फोर स्किन, आई एम टॉकिंग ऑफ फोर स्किन, ये जो लूज स्किन है, इन सम केसेस, इन सम रिलीजियस कस्टम्स, इट गेट्स रिमूव्ड एट एज द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज़ देयर, आफ्टर पार्टुरेशन इट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। कभी कभी ये हटा दी जाती है, किसी किसी रिलीजियस सेरेमनीज़ की बात कर रही हूँ मैं, ओके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video. If you seriously like my video, please hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you.